اور ایک مومن ہے ہمارے ساتھ, راجو. راجو بھائی مومن ہے آپ, اندھیرے والے راجو بھائی, اندھیرے والے راجو بھائی جی مومن ہے نا؟ ہیلو ایڈم, اور ایک مومن صاحب ہے. جی سر یہ آپ کے احمدی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں جہاں جہاں آدم کی تخلیق کا ذکر ہے وہ سب ایک فرضی کہانیاں بکواس ہے, آگ میں پھینک دو. جی, وہ ان کا سوچنا ہے, اور انہوں نے جو کافی دیر تک ابھی ہنسایا, مزہ بڑا آیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بھائی لیڈی کاری کون ہے یہ؟ لیڈی کاری نہیں ہے بھائی, لیڈا کاری ہے. لیڈا کاری. ہیلو, ایک منٹ راجو بھائی, ایک منٹ. جی ہمارے احمدی صاحب چل دیے, اوکے مطلب میرے خیال سے کنیکشن ایشو ہوا ہوگا. راجو بھائی سے بات کر لیتے. راجو بھائی آپ مومن ہے کیا نکل چکے؟ تیر کمان لگ سے بھگ نکلنے کے راستے پہ ہیں. نہیں ہے مومن. بٹ لیکن ایک سوال تھا میرا ایڈم بھائی آپ سے. راجو بھائی لیکن آپ مومن ہیں, کیسے ثابت ہوگا آپ مومن ہیں؟ جو آپ کو سننا ہو, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہ سننا ہے؟ پورا تو سنانا, یہ سننا ارایت کیا الذی مطلب ہے؟ سنا دیں, ارایت الذی سنا دو, ارایت الذی سنا دو. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صحیح ہے؟ ٹیسٹ پاس, ٹیسٹ پاس. چلے چلو ٹیڑھا میڑھا پڑھ لیا, چلے ٹھیک ہے پڑھ تو لیا. اچھا چلے سر, ہاں تو آپ نے اسلام اب چھوڑ دیا؟ جی لگ بھگ 95%. یہ آخری کون سی چیز رہ گئی ہے؟ دیکھو آخری یہ چیز رہ گئی ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر اس کے آپشن میں کیا ہے. نہیں ایک یہ پھر یہ رہ کچھ نہیں گیا. اس کے لیے پہلے اسلام کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پوچھنا آپ کیا. بھائی یہ بہت واجب کوشچن ہے ان کا. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں نا بھائی, چھوڑو گے تو پھر دیکھو گے نا, اگر آپ نے ابھی تک اینک نہیں اتاری اسلام کی تو پھر کیا مطلب ہے, پھر تو کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ لیجیے کہ اتر گئی ہے, بس یہی کچھ سوالات ہیں جن کی وجہ سے, جیسے کہ یونیورس ہے ہمارا, تو یہ اگر بنا ہے تو وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک دفعہ اینک اتارو پھر سوال کرو آگے پھر کیا. جی وہ سمجھ لیجیے کہ اتر ہی گئی ہے. نہیں دیکھو اتری نہیں اتر ہی گئی ہے. جس دن آپ کانفیڈنٹلی آگے کھڑے ہو گے نا, لو جی میں ہو گیا ہوں اب ایگنوسٹک, اب بتاؤ اب کیا. من سے تو میں ہو گیا ہوں بس. نہیں سر, منہ سے بھی ہوئے نا, کہے نا محمد ایک چھوٹا نبی ہے, بول دینا. لگتا تو ہے, لگتا نہیں یہ اس طرح نہیں سر, بیچ کی کہانیاں نہیں, کیونکہ میں نے جتنا بھی میں نے پڑھا ہے نا, جتنا بھی مطلب اسٹڈی کیا ہے میں نے قرآن حدیث, تو پھر تو بولتے میں ساری تکلیف چیزوں کیا کا ہے, اگر پھر ڈر کس بات کا, بولیں بس تھوڑا ڈر ہمت ہے, کریں تو اتنے سال سے ڈر میں رہے ہیں, اتنی جلدی نہیں سر. نکلے گا پھر ایڈم جب بھائی, ڈر تھوڑا سا نکلے گا ٹائم پھر لگے گا آئیے بھائی گا نا جان. سر, ابھی نہیں, آدھے رستے میں نہیں گیم ہوتی ہماری. نہیں تھوڑا سمجھائیں گے تو ہم اچھے سے نکل پائیں گے, جلدی نکل پائیں گے. آدھے نہ وہ پھر پہلے اسلام سے نکلے پھر آگے چلیں گے. اس میں ایڈم ایک منٹ, دیکھو راجو بھائی, اس میں آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اب بھی اسلام میں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے, اس وجہ سے میں ٹکا ہوا ہوں. یہ ویلڈ کوشچن ہو نہیں, سکتا ہے, کیا بولتے ہو ایڈم؟ مجھے کچھ نہیں صحیح لگ رہا ہے. تو پھر کہیں نا کہ تو میں نے اسلام ختم چھوڑ نا, دیا, پھر بولو ختم, پھر ڈھونڈتے بیٹھو. جی سب, ہاں ٹھیک ہے. بولو ساحل بھائی میں کچھ عرض کروں. جی عبداللہ بھائی. ایکچولی پرابلم کیا ہوتی ہے ساحل بھائی کی, جب اپن اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں صحیح غلط کے, تو ہم کو خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے مطلب دوسرے کمپیریزن کرتے تو جیسا لگتا ہے کہ اسلام سے زیادہ غلط دوسرے چیزیں, جیسے پولیتھیزم ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از پیگنزم ہے. پاسبل عبداللہ بھائی, دیٹ از پاسبل. ہاں بٹ یو نیڈ ٹو یس ایڈم انڈرسٹینڈ بولو. سے, اچھا چلو لیٹس سے کہ پولیتھیزم زیادہ غلط ہے, اوکے چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں, لیکن اس کا مطلب اسلام غلط ہے نا, پہلے وہاں سے تو نکلو. ہاں تو بھائی عبداللہ بھائی اس پوائنٹ کو سمجھو آپ. یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہو میں کتے کی ٹٹی میں نہیں جاؤں گا لیکن میں ہاتھی کی ٹٹی میں بیٹھا ہوں, یہ کیا بکواس ہوئی. ٹھیک ہے تو دونوں ٹٹی. لیٹس اسیوم, کیونکہ میں آپ کو ایک گندی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو. لیٹس اسیوم تمام ادر ریلیجن, دنیا کے جتنے بھی ریلیجن سب کو پکڑ لو, سارے کے سارے جو ہے نا وہ ٹٹی ہے, ٹھیک ہے.
गलत है, फेक है, मैं टट्टी मैन बोलने मेड को है। तैयार हूँ यार, कोई ठीक है, मसला नहीं, मैं हाँ, एक रिलीजियस बंदा हूँ, लेकिन मैं भी बोलने को तैयार हूँ ताकि एग्जाम्पल पूरी हो सके, ठीक है। हम्म, आप एक टट्टी में बैठे हुए हो और आप कह रहे हो बाकी सब लोग चूंकि टट्टी हैं लिहाजा मैं इस टट्टी में से नहीं निकलूंगा। क्यों भाई, पहले निकल आओ ना, ताकि तुम लोग फिर बाहर बैठ टट्टी से बाहर बैठ के देखो कौन सी चीज टट्टी नहीं है, देन यू विल बी एबल टू सी दैट। अंदर टट्टी के अंदर बैठ के आपको सब टट्टी नजर आएगा। एग्जैक्टली। विवेक और एक भाई, ये विशाल भाई का एक मैसेज भी बड़ा जबरदस्त है कि राजू हैज सोल्ड द हाउस बट इज नॉट रेडी टू अनहोल्ड द पोजीशन। ये भी मिसाल जो है वो काफी बेहतरीन। मैच होती है आपकी सिचुएशन से। राजू किधर गया? राजू भाई गायब हो गए। अब्दुल्ला भाई से बात कर लेते हैं ना अच्छा, ये राजू भाई पहले भी आए थे ना, ये राजू भाई भी जो बात कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे। ये रुक ही नहीं रहे थे। हाँ नहीं भाई, नहीं, राजू भाई तो नॉर्मल बात कर रहे थे। अच्छा, अच्छे वाले भाई अच्छे हैं। राजू भाई तो कह रहे थे 95 वो निकल चुके हैं, 5%। हाँ, वो निकल चुके हैं राजू भाई। तो एडम भाई, जो भी बीच में परफेक्ट रिलीजन वाली बात चल रही थी, हाँ, परफेक्ट को डिफाइन करें, परफेक्ट को डिफाइन करें। हाँ, तो यही मतलब कि ऐसा रिलीजन जिसमें जो बातें लिखी हो उस पे मतलब कोई शक ना कर सके, उस पे कोई सवाल ना उठा सके। जी 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 जी। और अगर सवाल उठे भी तो उसके परफेक्ट जवाब आए सामने से। बेहतरीन, तो परफेक्ट जवाब। जी जी जी। तो सर पहले परफेक्ट को डिफाइन करेंगे ना। What is मतलब perfect? परफेक्ट मतलब यही होता है ना कि जैसे हमारी बॉडी बनी है परफेक्ट है, अब इसमें कोई भी सवाल बॉडी हमारी करेगा परफेक्ट ना नहीं है, तो हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं है। बॉडी कहाँ से Perfect परफेक्ट है है। भाई? बॉडी कहाँ से अरे परफेक्ट है? यार, बॉडी हमारी परफेक्ट नहीं है। अब अभी जहाँ नाक लगी है कहीं और लगी होती तो उसके तो भी फिर 100 सवाल पैदा होंगे। हम हमेशा से इसको ऐसे ही देख रहे होते तो हमें वो अच्छी लगती। अगर नाक हमारे पेट पे होती, हम बचपन से पैदा होने से लेके अब तक हमेशा से पेट में देख रहे होते, तो हम उसे परफेक्ट कहते हैं। नो, दैट्स स्टुपिडिटी। हमारी बॉडी हरगिज परफेक्ट नहीं है। हमारी बॉडी डिटोरिएट होती है, हमारी बॉडी चेंज होती है, अडेप्ट होती है, बीमार होते हैं हम, बीमार होती है, हम इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, हम स्पेस में नहीं जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद आवर बॉडी, सो डोंट टेल आवर बॉडी इज परफेक्ट। ठीक, ओके सो डिफाइन परफेक्ट इन रिलीजन। अब परफेक्ट सर वही होगा कि मतलब सारी चीजें उसमें जो लिखी हो सही हो और वो प्रूफ के साथ आई हो। Once again, that's not true, because आपका जो टाइम एंड स्पेस है, it has to change. Humans has to adapt and evolve. So what is perfect? आप समझा दिए, सॉरी ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, सवाल आपका है कि मुझे परफेक्ट रिलीजन चाहिए, तो फिर मुझे जब तक आप परफेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकेंगे, मैं आपको परफेक्ट रिलीजन कैसे दूंगा? अब सर मेरी नजर में तो परफेक्ट यही वही चीज होती है कि जो जिसपे आदमी कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि हाँ भाई ये चीज क्वेश्चन परफेक्ट तो है। हर चीज पे होता है, लेकिन नहीं, उसका अंतर होना क्वेश्चन हर चाहिए। चीज पे होता है, क्वेश्चन हर चीज पे होता है। That is also stupidity to say कि तो सर आप क्वेश्चन मुझे नहीं कर समझा सके। दीजिए। क्वेश्चन तो आपने बताना है। सॉरी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जितने भी अच्छा मोमिन रिलीजन मेरे बता पास आते हैं, जितने भी मोमिन मेरे जी, पास जी। आते हैं, वो परफेक्ट क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया, जिसकी ट्रांसलेशन यूजुअली परफेक्ट के तौर पे की हुई है। टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन। अल्लाह ने कुरान में आपको एक बोंगी मार दी हुई है, ठीक है, और आप लोग उस बोंगी को ले लेके चलते हैं। दैट इज द बेसिक नासूर ऑफ द सोसाइटी ऑफ इस्लाम। कि आप लोगों को परफेक्ट का पता नहीं कहते किसे हैं। येट अगेन कुरान की कुछ आयतों में जो ये चंद एक चीजों की ट्रांसलेशन में लफ्ज यूज किया हुआ है, उसको ले लेके आप मेरे पास आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें बैठ के अपने घर में अकेले में, परफेक्शन किसे कहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, दीन के अंदर परफेक्शन क्या होती है? वंस अगेन लेट मी से अगेन दीज टू थिंग्स। सब दूसरी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी भी दीन के अंदर परफेक्शन किसे कहते हैं? क्या दीन का काम लॉ देना है? क्या दीन का काम स्पिरिचुअलिटी देना है? क्या दीन का काम इंसान को इंसान बनाना है, यानी ह्यूमेन बनाना है, या दीन का काम दूसरे लोगों के ऊपर जबर करना है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन, जिसको आप दीन कहते हैं? दीन का एसेंस क्या होना चाहिए, और उस एसेंस में परफेक्शन किसे कहते हैं? दैट इज व्हाट यू नीड टू फर्स्ट डिवेलप ऑन। जब तक आप मुझे ये वाला आंसर नहीं दे सकते, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप अभी तक जानते ही नहीं है आप क्या ढूंढ रहे हैं। जी
देखिए दीन का, अगर ये जितने भी आपने बताए हैं, अगर इनमें सबसे अच्छा जो है वो है कि दीन का सबसे अहम काम होना चाहिए कि इंसान को इंसानियत सिखाए। क्या इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाती है या मरना सिखाती है? नहीं ये तो है, वो तो छोड़ ही दीजिए, मैं अभी नया नया बताइए, ये तो छोड़ हो दीजिए गया ना, नहीं, छोड़ खत्म दीजिए करो। नहीं, छोड़ दीजिए नहीं। मैं छोड़ तब देता जब आप कहते हैं कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। देखिए, जी मैं जी आपको जी। बार बार कहता हूं, अगर कोई बंदा मेरे पास आके कहे मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, मैंने आज उसे छोड़ दिया, अब मुझे बता, मैं कभी कंपैरिजन नहीं लाऊंगा उस वक्त। लेकिन जब तक जी आप उसके साथ एक छोटी सी डोरी के साथ भी बंधे हुए हैं ना, तब तक कंपैरिजन होता रहेगा। जी मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, बोले जी बराबर, फॉल्स बोले ना, प्रोफेट है। बराबर नहीं, बोले बोले जी जी जी, बोले झूठे नहीं यार, है। है अभी भी इज्जत दे रहे हो। अरे हैं मोहम्मद ही एक झूठा बोलेंगे ना। नबी है, झूठे हाँ को इज्जत झूठा क्यों दे रहे नबी हो? है। कोई नहीं। हाँ, नहीं जी साहिल साहब, मुबारक हो। देखिए हमारे एक और एडम भाई, साहब मैं बहादुर ने आपसे कुछ इस्लाम छोड़ सीखने दिया। आया हूँ, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ, सीखने हाँ आया हाँ, हूँ, तो मुझे है ना इस्लाम के सवालों से दूर रह के कुछ अच्छा बताइए, तो मुझे अरे मैं अच्छा ढूंढो लगेगा ना आपसे। यार, ढूंढो ना भाई, देखो ढूंढो ना। सर, ये क्या सब होता है ना मेहनत हम कि ही लाइफ करेंगे तो आप क्या लाइफ करोगे? लाइफ लाइफ बहुत बिजी है। अगर एडम भाई इस फील्ड में है तो तो मैं जितनी बताऊं, जानकारी हमें महीनों सालों में मिलेगी ना, ये भाईजान हमें हफ्तों मेरी में दे मेरी बात देंगे। सुनो, फिर मैं एडम को मौका देता हूँ बोलने का। देखो, जी आपकी लाइफ ऑलरेडी बिजी है, ठीक है, जी आप इस्लाम से वैसे भी निकल चुके हो, जी आपको किसी और चीज की क्या जरूरत है? आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, गुजारो उसको, अपनी अपने करियर पे ध्यान दो, अपने अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो, ये सब में करो ना, ये सब चक्कर में क्यों फंस रहे हो? नहीं, एडम, लाइफ यू का वांट टू कैसा ऐड है ना। समथिंग, यू कैन से दैट। ठीक है नहीं एडम भाई से नहीं, बात, मैं इनको एडम भाई बोलिए आप। देखिए, किसी हद तक आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दीन दिखाने लगा हूँ। ठीक है, जी ये दीन एक स्पेशल चर्च है। ठीक है, इन्होंने जी एक चर्च भी खोला हुआ है। ये दीन है, इनके जो खुदा है इनका नाम है स्पैगेटी मॉन्स्टर। स्पैगेटी का पता है क्या होता है? नहीं नहीं बताइए। स्पैगेटी का नहीं पता आपको? ये इटालियन नहीं। वर्ड है, नूडल्स को कहते हैं स्पैगेटी। जी नूडल्स जो खाते हैं ना, जी हाँ। तो इनके जो चर्च, इससे जो खास किस्म का एक चर्च है, रजिस्टर्ड दीन है, बाय द वे आपको बता दूंगा, रजिस्टर्ड दीन है। ये एक रजिस्टर्ड दीन है, इसका नाम है चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। चर्च ऑफ व्हाट राजू भाई? चर्च ऑफ व्हाट? जी नाम ही बोलिए इतना बोलिए। खतरनाक बोला। सर, फ्लाइंग और फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। जी ठीक है। ठीक है, आप इनको पढ़ के आइए मेरे पास और फिर हम जो है ना आपके साथ इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि अच्छा क्या है और परफेक्ट क्या है। जी ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको पता लग जाए मैं जी झूठ नहीं दिखाइए। बोल रहा सर। मैं आपको स्पेशल चर्च दिखा रहा हूँ सर। ये चर्च है, चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ठीक है जी, जी ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और ये देखिए जरा, इनकी वीडियो देखिए कितनी मजे की है। ये देखिए, वाह, इतनी अच्छी वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो कोई बना सकता है? 3D में बनी हुई है, एआई बेस्ड। ठीक है, ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और अगर आप ये इसके ऊपर देखें ना, ये $49 लेते हैं और आपको अपनी जी तमाम बुक्स दे देते हैं। बहुत ढेर सारे पैसे नहीं लेते ये। आप गेट इट नाउ करेंगे तो आपको $49 के अंदर अपनी कंप्लीट बुक्स दे देंगे अपने रिलीजन की। ठीक है, जी आप इसको मेरे साथ पढ़ें तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर एक और डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं आपके साथ, चूंकि लोग लाइव में हमें ये वाली चीजें इतनी देखना पसंद नहीं करते, तो मैं और आप जो है ना डिस्कॉर्ड पे 1-on-1 गपशप लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जी जी तो फिर हम देखेंगे कि ये जो रिलीजन जो बाद में क्रिएट हुआ है, तकरीबन रिसेंटली क्रिएट हुआ है, कोई आज से कोई 20 साल पहले, 10 साल पहले, इस रिलीजन में और कुछ और चीजों में किस तरीके से हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, जी तो फिर हम सच्चाई की तलाश करेंगे मिलके। ठीक है, फॉर नाउ आप ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को पढ़े और फिर मेरे पास आए, देखते हैं कि परफेक्शन किसे कहते हैं। लंबा काम दे दिया आपने। सर अब कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली यही मैं समझा रहा था कि खाओ पियो, हगो मूतो और खुश रहो। ये सब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए कि इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लग रही है, ताकि हमें समझ में भी तो आए। इस्लाम में
देखो सही क्या है? कई अभी मुझे मतलब कई चीजें तो मैं ऐसा याद तो नहीं है कि मैं आयत वगैरह में मोटी मोटी कोट बातें, कर दूं। मोटी मोटी बातें। जैसे कि सबसे पहले कुरान का जो लिखने का जो तरीका है एक हम्म सीक्वेंस में नहीं है। कोई भी आयतें कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, 2 आयतें तलाक पे चल हम्म रही हैं, फिर उसके बाद मामला कहीं और चला जा रहा है, कहीं हम्म जिहाद आ जा रहा है उसी में। और ये हम्म तो एक चलो मसला तो था ही था। हम्म और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, या अबू लहब वाली ले लो, तब्बत यदा ले लो, हम्म इसका ही अगर हम्म मायने इंसान अच्छे से पढ़े ना, जितने भी अपने मोमिन भाई हैं, तो यही समझ हम्म जाएंगे कि ये अल्लाह की भेजी हुई आयत है भी कि नहीं है। क्यों ऐसे? तब्बत यदा अबी लहब तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु, वो जो तब वो अबू लहब के लिए जो हाथ टूट जाए वगैरह वगैरह जो है। हम्म तो जब मैंने ये सूरह पढ़ी ना, भाई पास्ट टेंस तो है, टूट जाएंगी नहीं, टूट गई। टूट गए। हाँ हाँ टूट गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था मेरे हिसाब से शायद। स्पिरिचुअली टूटी थी ना। तो ओके, वहां से फिर फिर मैंने और? फिर और भी कई सारी चीजें भी ध्यान में नहीं आ रहा है। हम्म और आपको क्या बता दूं मैं, वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो वाकया है कि लोगों ने कहा दिखाने के लिए हम्म कि हमें दिखाओ तो हम मानेंगे, तो वो हम्म आयत नहीं आई थी कि अगर हमें वो मतलब फरिश्ता भेजना ही होता तो हम काम ही तमाम कर देते, मोहलत ही ना देते। हम्म हम्म एक हम्म ये आयत है। और अपना ये बहुत सारी चीजें अभी, अगर मैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मुझे, मैंने लगभग सब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब आप लोगों को हम्म सुनना शुरू किया है, तो फिर मैंने कहा हम्म कि चलो इनसे थोड़ा जुड़ते हैं, कुछ नया सीखने मिलेगा। हम्म तो वही हिसाब से, जैसे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मेरा हम्म वजूद ही नहीं है। मैं आपको मारूं अगर, हम्म तो भी अल्लाह की मर्जी है, तो मुझे जहन्नम में डालोगे, ये भी हम्म एक मसला है कि नहीं भाईजान? हम्म सही 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 तो है। बहुत सारी ये पहला ही मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन ही ये था, जब मैं शायद 14 या 15 साल का था। तो मैंने हम्म मस्जिद के मौलाना से पूछा था ये सवाल। तो हम्म उन्होंने बोला इन सब चक्करों में मत पड़ो बेटा, सवाल नहीं पूछो। नमाज पढ़ो, रोजे रखो। तो उस दिन से हम्म मैं लगभग, आज मुझे 15 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। हम्म 4-5 पूरी मुकम्मल हदीसें पढ़ी हैं मैंने, कुरान का तर्जुमा कई बार समझा। और अपना गुलाम हम्म अहमद परवेज, मोहम्मद शेख, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनको सुना, हम्म काफी हम्म समझा, पर कुछ हल निकला नहीं। ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम्म सब जो लिखा हुआ है वही उनके लिए सही है, और वही सब बयान कर रहे हैं। बस कोई अपने थॉट बयान कर रहा है, कोई अपने कर रहा है, सब अलग अलग कर रहे सही, हैं। तो बहुत ये वजह से जबरदस्त। मैंने कहा कि कोई हम्म बहुत जबरदस्त। तो राजू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आप यहाँ से आके पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आप चाहे तो आगे, जैसे कि एडम ने कहा, आप एक सीकर बन के तलाश कर सकते हैं विच इज दी परफेक्ट रिलीजन, या जैसे कि मैंने कहा कि अपनी लाइफ गुजारे, अच्छे से रहें, हम्म। करियर पे फोकस करें, घर वालों पे फोकस करें, जो भी आपकी तमन्ना है आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आज जी जी, इस अभी चीज मैं से 2 साल बाहर से निकल गए। वही कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइफ, अपनी फैमिली, वही देख रहा हूँ मैं। जी और भाई, उसके आप अलावा साजिद कुछ ही की नहीं। तरह हैं। नमाज मुझे पढ़े हुए आज 4 साल या 5 साल हो गए होंगे। मैं ईद की भी नहीं जाता हूँ भी। जी भाई, चलिए, साजिद की बहुत तरफ से भी जबरदस्त। मुबारकबाद कबूल कर लें, और जान जाएं आप कि जो ईमान होता है, इस्लाम होता है, वो इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब का नाम है। यानी जबान से इकरार करना और दिल से यकीन जानना, जरा भी शक सही शुबा बात। ना रहे कुरान पे, तब वो मुस्लिम है। वरना आपके दिल में शुबहात हैं, और बहुत खुशी हुई कि आप इस्लाम से इंसानियत तक आ गए। जी जी, और बहुत फर्क ठीक भी है पड़ा राजू है भाई। मुझे इससे। हम्म अभी जैसे कि हमारे पास में काफी नॉन मुस्लिम रहते हैं, में हिंदू भाई लोग। तो अभी हम्म अगर मैं पहले जैसे इस्लाम में था, तो उसमें कहता हिंदुओं से बात नहीं करो, मिलो जुलो नहीं, उनकी पूजा हम्म आरती में नहीं जाना है। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मैं जाता हूँ, वो बुलाते हैं प्यार से, मैं जाता हूँ, पूरी हम्म फैमिली जाती है। मतलब वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा तो वहीं रहता है हमेशा, 2.5 साल का है हम्म वो, हम्म तो वहीं रहता है। वो जाके उनके साथ पूजा अर्चना भी करता है, टीका भी लगा के आता है। साथ में हम दोनों की हम्म काफी अच्छी बॉन्डिंग है। नॉन मुस्लिम हम मुस्लिम समझो थे, मतलब मैं। हम्म तो इस्लाम छोड़ने के बाद देखो कितना अच्छा रिलेशन बना उनसे हमारा। ना हम हम्म उनको गलत नजर से देख रहे हैं, और ना वो हमको देख रहे हैं। अगर ये मैं इस्लाम में होता, तो सबसे पहले मैं मना कर देता कि नहीं भाई, हमको हम्म नहीं आना है आपके साथ।
अभी गणेश चतुर्थी थी, उसमें भी हम लोग 5 दिन उनके साथ लगे रहे, उनको भी काफी अच्छा लगा। तो इंसानियत ही तो है कि हाँ, अगर ये बिल्कुल। धर्म में होते, इस्लाम मजहब में, तो 100 बार सोचते जाए कि ना जाए भाई, है कि नहीं? सही तो बात है, आपस बिल्कुल सही सामने बात। सामने घर वालों में भी आपके लिए बनती नहीं। आपके लिए एक कमेंट आया है, निधि पटेल कह रही है राजू तो देव मानुस दिखला। ये बाबा, ये राजू तो देव मानुस निकला रे बाबा। देवा रे देवा, राजू ये राजू मैं मेरा क्या नाम कल समझ उन्होंने रहा था रे रखा, मैं राजू। गालिब भाई के स्ट्रीम में गया था, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया राजू। मतलब ठीक है, नहीं, ठीक ए है, ठीक है। राजू। ओए राजू दिल पे ना लियो। कोई चलो बात काफी नहीं। दिन से मैं सोच रहा था आप लोगों साहिल से भाई, बात करने के लिए। हाँ जी जी अब्दुल्ला भाई। भाई राजू तो शाहरुख खान ही रहेगा, आप देखना भाई। राजू बन गया जेंटलमैन। चलिए राजू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं। ठीक भाईजान, चलिए ख्याल रखिएगा अपना। ओके। ओके हम